Dear students, in this video I'm going to start the chapter 7, that is Visual Basic, the language of Windows, right? So firstly we will see what is Visual Basic and why do I need it, right? So the Visual Basic is an easy to learn programming language. What is easy to learn programming language? With Visual Basics you can develop Windows based application and games. विजुअल बेसिक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन और गेम्स को डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हो टू डेवलप अ वेबसाइट, सेम एज इट इज़ वी कैन यूज़ a visual basic language to develop web based application, window based applications and games, right? So the visual basic is much easier to learn than other languages like C++ and visual C++. ठीक है, yet it's a powerful programming language also, right? ये जो इसका कोड होता है वो क्या है, easy to learn है, ठीक है, rather than the other languages. So the visual basic, or you can say VB for game developing. किस लिए यूज़ करते हैं हम VB को? फॉर द गेम डेवलपमेंट. कोई भी पर्टिकुलर गेम्स आपको, जो ऑनलाइन गेम्स आप प्ले करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में या फिर अपने फ़ोन्स में, ठीक है, वो किसकी हेल्प से डेवलप किए जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करके? विजुअल बेसिक्स. क्लियर? You can create sophisticated games using visual basics, but if you want to make a really advanced professional game like Quake 2 means काफ़ी अच्छी हाई स्टैंडर्ड के हम गेम्स, एडवांस प्रोफेशनल गेम्स हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं यूजिंग द विजुअल बेसिक्स, right? So visual basics will be probably powerful enough to suit all your applications and games programming needs. Basically the concept is Visual Basic is a visual and event driven programming language. Event driven means कोई भी particular task आप perform कर सकते हो, ठीक है, in a graphical environment. Graphical environments buttons का यूज़ करके, ठीक है, boxes and buttons का यूज़ करके आप किसी particular टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ विजुअल बेसिक्स. It is simple language. Things that may be difficult to program with on another language, but it can be done in Visual Basics very easily. ठीक है, ये एक सिंपल लैंग्वेज होती है और अदर लैंग्वेजेस की कंपैरिजन में, ठीक है. Visual Basics provides a convenient method for building user interface. It provides a very convenient method for building user interfaces. ठीक है, मीन्स आपको कोई भी पर्टिकुलर टास्क आपको डेवलप करना है, कोई गेम डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है, जो इंटरफेस प्रोवाइड होता है जिस पे आप डेवलप करते हो उस पर्टिकुलर टास्क को, ठीक है, तो वो ये कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करती है उसका, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअल बेसिक्स कैन इंटरफेस विद कोड्स रिटन इन सी फॉर एफिशिएंसी. जो विजुअल बेसिक्स के अंदर जो भी इंटरफेसेस, जो कोड्स हैं, वो किस में लिख सकते हैं हम, सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है. So Visual Basic is so popular. There are many good resources, books, websites, newspapers and more that can help you learn the language. Means आप books की help से, websites की help से आप क्या कर सकते हो, इस language को read कर सकते हो, समझ सकते हो. You can find the answers to your programming problems much more easily than other programming languages. इसमें इसको क्या करना, टैकल करना easy होता है. You can find many tools, sharewares and freewares on the internet that will spare you some programming time. For example, if you want to ping a user over the internet in your program, instead of writing the ping function yourself, you can download a control that does it and use it in your program. Means अगर आपको कोई इंटरनेट का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर यूज़र को पिंग करना, पिंग मीन्स मैसेज करना है, ठीक है, यूजिंग इंटरनेट, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डाउनलोड करना है, क्या, एक कंट्रोल को डाउनलोड करना होगा जिसकी हेल्प से वो ऑटोमेटिकली अपने आपके प्रोग्राम में यूज़ हो जाएगा, राइट. कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, विजुअल बेसिक्स हैज़ द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ टूल्स दैट यू कैन डाउनलोड ऑन द इंटरनेट एंड यूज़ इन योर प्रोग्राम्स. मीन्स मल्टीपल टूल्स हैं आपकी विजुअल बेसिक्स के अंदर जो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, इफ़ेक्टिव बना सकते हो, राइट. Then the disadvantages of Visual Basic. Visual Basic is not a powerful programming language that enable you to
डू एनीथिंग यू वांट। इट इज़ नॉट एलिगेंट और फास्ट, ये ज़्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है। ये एक लिमिटेड फंक्शंस को परफॉर्म करती है। विजुअल बेसिक इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर सी। ये नहीं है कि आप ये इसकी सी लैंग्वेज की रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलग फंक्शंस होते हैं, सी के अलग होते हैं। विजुअल बेसिक इज़ नॉट एनीथिंग लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैड एवर यूज्ड। इट्स मच स्लोअर देन अदर लैंग्वेजेस। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? It is slower than other languages, right? Next is getting started with Visual Basic. Means how can you start a Visual Basic? The first step is to create a project template with VB to organize and store your work. सबसे पहले आपको सबसे फर्स्ट स्टेप जो हो वो क्या करना है? आपको एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्रिएट करना है, ठीक है। This will consist of a menu structure with headings that will let you access the many exercises and examples you complete. Run the VB program. The first thing you see is, जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या होगी? शो लेट्स सी हियर यू चूज़ द काइंड ऑफ द प्रोग्राम यू वांट टू क्रिएट। मीन्स किसी भी टाइप का प्रोग्राम आप क्रिएट करना चाहते हो वो आपको चूज़ कर सकते हो। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, राइट। So firstly, to creating a simple VB program, if you want to create a simple VB program, choose the standard exe and then press the open button. The first button you can see in the picture here is the icon also shown, the standard exe. If you want to create a simple VB, you have to choose the standard exe and press the open button. You can see in the window, right? If the above picture is not the first thing you see when you run the Visual Basic, choose from the VB Basic menu file then new project. अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं होते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे? VB की मेन्यू फाइल से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये जो न्यू प्रोजेक्ट की विंडो आपको दिखाई दे रही है, इस विंडो के अंदर आपको शो होगा स्टैंडर्ड exe आइकन, ठीक है। आफ्टर यू हैव क्लिक द ओपन बटन यू विल सी, जब आप क्लिक करोगे ओपन बटन पे तो क्या शो होगा? लेट्स सी, लुक एट द फॉर्म विद द टाइटल बार फॉर्म 1। मीन्स जो भी पर्टिकुलर, दिस इज हाउ योर प्रोग्राम विल लुक लाइक। एवरीथिंग यू प्लेस ऑन दिस फॉर्म विल अपीयर इन योर प्रोग्राम्स। लेट्स सी हाउ। एज यू कैन सी योर फॉर्म इज currently empty. In the picture you can see here is the form 1 in the project form 1, right? The form 1 that is empty. You didn't program anything yet, but let's run the program. आपने इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी क्रिएट नहीं किया, बट फिर भी हम क्या करते हैं, इसको सिंपली इसको क्रिएट करते हैं, सिंपली इसको रन करते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन द प्ले बटन इन द टूल बार. You can see here is the toolbar, right? Here you can see under the below the run tab, you can see here is the play button. You have to click on the play button to run the program, that is empty program. Clear? Now your program is running, ठीक है। As you can see the form is empty. You can move the form and minimize and maximize it. Means ये एक पर्टिकुलर आपने इसके अंदर राइट तो कुछ नहीं करा है, बट ये विंडो क्रिएट हो गई आपकी। ये जो विंडोज़ आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हो, ठीक है, जैसे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिस पे आपको क्लिक करना है, फाइल को सेव करके ओके करना है, तो इस टाइप के जो फॉर्म्स हैं, जो विंडोज़ जो डायलॉग बॉक्स क्रिएट होते हैं, वो हम वीबी की हेल्प से क्रिएट करते हैं, राइट। सो ये इसी टाइप का एक फॉर्म 1 क्रिएट हो गया है, राइट। You can, as you can see the form is empty. You can move the form minimize and maximize. आप अपने अकॉर्डिंग इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो फॉर्म 1 एम्प्टी फॉर्म 1 जो आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये एक डायलॉग बॉक्स भी बोल सकते हो, फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन द स्टॉप बटन इन द टूल बार। यहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर सिर्फ क्या क्या मिला है ऑटोमेटिकली? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स, ठीक है। ये आपका क्या है, एक विंडो जो आपने क्रिएट कर लिया है, किसकी हेल्प से? विजुअल बेसिक्स की हेल्प से। क्लियर? इट इज़ रिकमेंडेबल दैट यू शुड ऑलवेज क्लोज योर प्रोग्राम यूजिंग द फॉर्म एक्स बटन इंस्टेड ऑफ विजुअल बेसिक स्टॉप बटन। अगर आपको अपने प्रोग्राम को बंद करना है तो फॉर्म का जो एक्स बटन होता है, जो फॉर्म का जो क्लोजिंग बटन होता है, आपको उस पर क्लिक करना है, ना कि आपके वीबी के स्टॉप बटन पे। अगर आप वीबी वाली विंडो पे जो स्टॉप बटन होता है, क्रॉस का जो सिंबल होता है,
और आप उस पर क्लिक करोगे तो कंप्लीट वीबी जो है हमारी लैंग्वेज वो विंडो ही शट डाउन हो जाएगी, राइट। You can see in the picture also at the last the form 1, then minimize, maximize and close. Then if you want to close the form 1, then you have to click on the close button. Clear? Next is learning about properties. What are the properties of a form? मीन्स आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टास्क उसमें आपको बिल्ट इन करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके फॉर्म की? द फर्स्ट विल बी एवरी कंपोनेंट, मीन्स एवरी फॉर्म यू कैन सी, जो आपका फॉर्म होता है वो आपका कंपोनेंट होता है, ठीक है। एवरी फॉर्म और एवरी कंपोनेंट हैज़ प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन इट्स लुक एंड फंक्शनिंग। ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की कुछ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिससे उसकी फंक्शनिंग डिफाइन होती है। सो प्रॉपर्टीज़ कैन बी द कंपोनेंट कलर, विड्थ, हाइट एंड मोर। कंपोनेंट्स में क्या हो सकता है, क्या कलर होगा फॉर्म का, क्या विड्थ और हाइट होगी, ठीक है, एंड सो मैनी थिंग्स। सो टू सी द फॉर्म प्रॉपर्टीज सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू, व्यू देन प्रॉपर्टी विंडो। मेन्यू के अंदर जो व्यू है, ठीक है, व्यू टैब है, उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो पे क्लिक करना है। इन द रेड सर्कल यू कैन सी द कंपोनेंट्स नेम, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ of a form. A form name is form 1. The column marked by blue circle contains the form property names. The form has name property, appearance property, auto redraw property and more. And the column marked by the black circle contains the form property values. The form name is form 1, means form का name क्या है, ठीक है, उसकी appearance property क्या है, फर्स्ट टू थर्ड डी। डायमेंशंस मीन्स यू कैन चेंज द फॉर्म प्रॉपर्टीज़, आप प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि इसमें आपकी पूरी डिटेल्स होती है कि इस फॉर्म के अंदर क्या क्या आप कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने फॉर्म के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर्टीज़ विंडो। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन डिटेल about the properties window. For example, let's change the form's caption property. कैप्शन प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। पहले समझते हैं कि कैप्शन प्रॉपर्टी है क्या। द कैप्शन इज़ द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द फॉर्म्स टाइटल बार। आपके टाइटल पे जो शो होता है, ठीक है, आपके फॉर्म का जो टाइटल है, जैसे फॉर्म 1 था तो उसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर्म 1 को, जो फॉर्म 1 नेम लिखा गया है आपके फॉर्म का, उसको चेंज करके, उसके कैप्शन को चेंज करके आप उसके टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो। क्लियर? जैसे आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है, फॉर्म 1 की जगह हेलो। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज एडिंग कंट्रोल्स टू द फॉर्म। उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आप कंट्रोल्स कैसे ऐड कर सकते हो। कंट्रोल मीन्स मल्टीपल बटन्स, लाइक बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स मीन्स जिसमें आपको टेक्स्ट लिखवाना है। पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, स्क्रॉल बार्स एंड मोर, स्क्रॉल बार भी ऐड कर सकते हो आप अपने फॉर्म के अंदर। क्लियर? सिंपली बेटा ये क्या है, आपका एक विंडो क्रिएट करना, एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना। जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होता है कि आपको फाइल को सेव करना है, तो उसके लिए ओपन, कैंसिल एंड ओके, ठीक है, इन बटन्स का यूज़ होता है। फिर जो जहाँ पे आप फाइल का नेम देते हो वहाँ पे वो टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट बॉक्स आपका कंसीडर होता है। तो ये सब हम वीबी की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम वीबी की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी